Hello, my dear students, my little sweet angels. A lots of love to you. I hope that you all will be very happy and safe at your ends. I wish that you must take care of yourself too, as well as your environment, your surrounding, your parents, your friends, and all, because it's a pandemic time. So you all will be very careful. So now we will start a new chapter here. Across the wall. दीवार फांदी. किसने फांदी? We will study in this chapter. This is a chapter of girls. This is a chapter of passion. This is a chapter of strongness. Very nice stories are there, Let's read it. This is class 5, EVS subject, chapter number 17. Have you ever played? You have played a solo game or a team game? Just discuss with me in the chat box. But here you have to just read this chapter with me, and I'll try to make aware about the sports, girls, passion, hard work, and various of the things. Just look at this picture, beta. These are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, 9 girls. Okay, and these girls are the part of a basketball team, and in this chapter we have to take interview of these girls. Get it? And try to know about their stories, how they started to game and how they played, etc, etc, etc. Okay, just come here. Just 13 years old, केवल 13 साल की, अफसाना मंसूरी has already means पहले ही. You must note down the words basically and try to speak them too, with me and alone too. Jumped over the wall. अफसाना मंसूरी ने पहले ही वो दीवार कूद ली थी. Which one? कौन सी wall? Which wall? The wall between her झुग्गी and the local basketball court. वो दीवार जो उसके घर के और उसके बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में थी. Between मतलब बीच में. The wall made by society. ये वॉल सोसाइटी ने बनाई थी. कैसे बनाई थी? फॉर अ गर्ल हु वॉशेज यूटेंसिल्स फॉर अ लिविंग. एक बच्ची जो जीने के लिए बर्तन मांजती है. द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर. एक जेंडर वॉल बना ली थी उनकी माँ ने. किसकी माँ ने? अफसाना की माँ ने. एंड व्हाट शी सेड अबाउट इट? गर्ल चाइल्ड विल नॉट प्ले, गर्ल हैज टू नॉट प्ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लड़कियां नहीं खेलेंगी, उनकी माँ ये कहती थी. Today, Afsana herself has become a strong wall of NBA. आज become means बन गई है. कौन बन गई है? अफसाना एक स्ट्रॉन्ग वॉल बन गई है गर्ल्स के लिए स्पेशली. द NBA means द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई. किसकी स्ट्रॉन्ग वॉल है वो? गर्ल्स के लिए Nagpara Basketball Association of Mumbai. Today she is the source of strength for four or five other girls who have come to the basketball court. आज वो न केवल अपने लिए सोर्स मतलब स्रोत बन गई है, शक्ति का स्रोत. किसके लिए? उन 5 लड़कियों के लिए जो बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल खेलने के लिए आती हैं. Leaving behind the problems. Leaving behind. Leaving मतलब छोड़ दिया. Behind मतलब पीछे. पीछे छोड़ दिया है उसने. क्या पीछे छोड़ दिया है? समस्याओं को. द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द एवरीडे लाइफ, जो हमारी हर रोज की जिंदगी में समस्याएं आती हैं. टुडे शी इज द स्टार ऑफ अ यंग टीम. आज वो एक यंग टीम की स्टार खिलाड़ी है. दिस टीम हैज मैनेज टू सरप्राइज मतलब हैरान किया. इस टीम ने मुंबई के जो क्लब से जो बास्केटबॉल खेलते थे उनको भी बहुत हैरान किया. विद लॉट्स ऑफ गट्स एंड करेज, पूरी बहादुरी के साथ. द टीम हैज रीच्ड मतलब पहुंची. कहाँ पहुंची? द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट. एक क्षेत्रीय स्तर के टूर्नामेंट में वो सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए. और सबको बड़ी everybody was very surprised to see the success of this team. Have you seen this picture, beta? This is a basketball court and this is a small basket, and we have to drop this our basketball in the net and we get a goal, and the symbol of success. Have you ever seen the basketball court in your school?
in your surrounding somewhere. Just discuss with your teacher. Okay, meet with the special team. आइए स्पेशल टीम से मिलते हैं. मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन. एट फर्स्ट द गर्ल वर क्वाइट मीन्स चुप थी. लड़कियां एट फर्स्ट पहले. एट फर्स्ट मीन्स पहले. द गर्ल्स वर क्वाइट बिल्कुल चुप थी. बट वंस दे स्टार्टेड, लेकिन एक बार जब उन्होंने बोलना शुरू किया, दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप, वो बिल्कुल नहीं रुकी. जरीन बिगेन, जरीन ने शुरुआत की. माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड. फ्रंट मीन्स सामने. मेरा घर इस बास्केटबॉल ग्राउंड के बिल्कुल सामने है. माई ब्रदर यूज टू प्ले हेयर, और मेरा भाई हमेशा यहाँ खेलता था. आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉय प्ले. मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर लड़कों को खेलते हुए देखती थी. फ्रंट मीन्स के सामने, वॉच मीन्स देखा. आई वॉज इन क्लास 7 एट दैट टाइम. मैं उस वक्त कक्षा 7 में पढ़ती थी. वेन एवर, जब कभी द बॉयज प्लेड अ मैच, मैनी पीपल केम टू वॉच. जब भी लड़के मैच खेलते, बहुत सारे लोग उनका मैच देखने के लिए आते थे. द विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज. और जो विनिंग टीम थी, यानी कि विनिंग टीम मतलब जीतने वाली टीम थी, उसको बहुत तारीफें मिलती थी. प्रेज मतलब लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे. एवरीवन चीयर्ड, हर व्यक्ति चीयर करता था, उनको मोटिवेट करता था, उनके लिए खुशी मनाता था. द प्लेयर्स ऑन सीइंग ऑल दिस, ये सब देखकर, आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले, मुझे भी इच्छा होती काश मैं खेल सकती. वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट, क्या मुझे कभी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा. टैलेंट मतलब अपना गुण, अपनी विशेषता. आई आस्क्ड द कोच, मैंने कोच से पूछा. बट वॉज अफ्रेड, लेकिन फिर डर लगा मुझे. ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, वो मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे. द कोच सेड, कोच ने कहा. वाई नॉट, क्यों नहीं. वाई नॉट मीन्स क्यों नहीं. इफ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स, अगर तुम कुछ लड़कियों को ले आओ, यू कैन मेक अ टीम, तो तुम्हारी भी बड़ी अच्छी टीम बन सकती है. देन आई विल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा. वी आस्क्ड, हमने पूछा. वॉज इट वी आस्क्ड, अब नाउ वी आस्क, वी पीपल वांट टू नो अबाउट, इज इट इजी टू मेक अ बिगिनिंग, क्या शुरुआत करना इतना आसान था. बिगिनिंग मतलब शुरुआत करना. खुशनूर, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड, पहले तो मेरे माता पिता ने रिफ्यूज किया, मना कर दिया. बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे अग्रीड, लेकिन जब मैंने जोर दिया, इंसिस्ट करने का मतलब जोर देकर कहना, जब मैंने जोर दिया तो वो मान गए. एंड दे स्टार्टेड टू प्ले. नाउ अफसाना, माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स. नाउ अफसाना कहती है, माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स, मेरी माँ फ्लैट्स में काम करती है. एंड सेंड अस टू स्कूल, और हमें स्कूल भेजती है. आई ऑल्सो हेल्प हर, मैं भी उसको मदद करती हूँ. व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल, और जब मैंने माँ को बताया अपने प्लान्स के बारे में कि मैं बास्केटबॉल खेलूंगी, अम्मी गोट एंग्री. एंग्री मीन्स नाराज हो गई. अम्मी बहुत नाराज हुई. शी सेड, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, गर्ल्स बास्केटबॉल नहीं खेलती. डू योर वर्क, अपना काम करो. गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड, स्कूल जाओ और अपना मेहनत से पढ़ो. नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले, कोई ज़रूरत नहीं है ग्राउंड में खेलने जाने की. Here is the word told, told means बताया. There is a word angry, नाराज हो गए. And no need, कोई ज़रूरत नहीं है. But when my friends in coach sir talked, talk मतलब बात की. किसने बात की? कोच ने और अफसाना के फ्रेंड्स ने. किससे बात की? मम्मा से, अम्मी से. When she sir talked to her, अम्मी agreed, अम्मी मान गई. Then Afrin said, we were not allowed, हमें तो अनुमति ही नहीं थी. Because we are girls, क्योंकि हम लड़कियां थी. My dear students, there are some parents who are not allowed to their girl child to play. Have you ever seen? Have you experienced such type of things? If yes, kindly share with me. My grandmother gets very angry with all of us. दादी माँ तो हमसे बहुत ही नाराज हो गई. बट स्टिल, फिर भी, वी 3 सिस्टर्स कम हेयर टू प्ले, हम 3 बहनें यहाँ पर खेलने के लिए आई. ग्रैंड मदर स्कोल्ड अस, ग्रैंड मदर ने हमें धमकाया. एंड इवन स्कोल्ड्स आर कोच सर, और हमारे कोच सर को भी. शी टेल्स अस, उन्होंने बताया.
वो शी टेल्स अस, वो बताती हैं, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले। इक्विपमेंट मतलब सामान, आपको खेलने के लिए सामान चाहिए। एंड विच इक्विपमेंट यू नीड टू प्ले बास्केटबॉल? यू नीड अ बास्केटबॉल, यू नीड अ पोल, यू नीड अ नेट, एक्सेट्रा। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ, ताकत के लिए क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। दूध से ताकत मिलती है। यू गॉट स्ट्रेंथ बाय द मिल्क। वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम? इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? बट दादी अंडरस्टैंड्स आर फीलिंग। बट जो डैडी थे हमारे, वो हमारी भावनाओं को समझते थे। ही इवन टीचेस अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन गेम। एंड डैडी ने हमें ये भी सिखाया कि क्या स्पेशल मूव्स हो सकते हैं उस गेम के लिए। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले। मेरे पिता भी, मेरे जो डैडी हैं, पिता हैं, वो भी खेलते थे। दिस ग्राउंड व्हेन ही वॉज यंग। इसी ग्राउंड में जब वो बच्चे थे। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज और क्लोथ्स। उनके पास तो प्रॉपर कपड़े भी नहीं थे, शूज भी नहीं थे। ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल। और वो प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज टू प्ले। जब वेयर आई वॉज, डैडी टेल्स अस, डैडी बताते हैं कि बच्चू खान वॉज द कोच, बच्चू खान हमारे कोच थे। व्हेन ही यूज टू प्ले, जब पापा खेलते थे। ही सा माई डैडी प्लेइंग वंस। उन्होंने मेरे डैडी को खेलते हुए भी देखा था। ही रियलाइज्ड, उन्होंने ये महसूस भी किया था, दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेन्ड प्रॉपरली। कि ये बच्चा बहुत अच्छा खेल सकता है या बहुत अच्छा खेलेगा, दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली, इसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ही गेव प्रॉपर शूज, उन्होंने उनको जूते दिए। एंड क्लोथ्स टू माई डैडी, और कपड़े भी दिए। माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर। शायद मेरे पिता बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, बट कुड हैव बिकम, बन सकते थे, बट बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जो जिम्मेदारियां की वजह से, एट होम, घर की जिम्मेदारियों की वजह से, ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप अ जॉब, और नौकरी कर ली। सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर्स। सो ही वॉन्ट्स मतलब वो चाहते थे। माई फादर वॉन्ट्स बेसिकली हियर, माई फादर वॉन्ट्स मीन्स चाहना, अस टू प्ले, वो चाहते थे कि हम खेलें एंड बिकम गुड प्लेयर्स, और अच्छे खिलाड़ी बने। दीज आर दी अफसाना, आफरीन, जरीन, खुशनूर एंड ऑल अदर गर्ल्स, you know. Have you seen such type of girls team playing? Okay. Where is the cursor has went on? We ask, हमने फिर पूछा। Asked मतलब पूछा। Tell us about your team. अपनी टीम के बारे में बताओ। One girl, we felt a bit strange in the beginning. Strange मतलब अजीब लगा हमें। In beginning मतलब शुरुआत में we felt, लगा मतलब ने महसूस हुआ कुछ अजीब। We were the first girls team here. हम यहाँ पर पहली लड़कियों की टीम थी। People used to come and watch us practicing. लोग आते थे और हमें देखते थे प्रैक्टिस करते हुए। They were curious. उनको बड़ी जिज्ञासा होती थी, वो जानना चाहते थे टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल, कि लड़कियां बास्केटबॉल कैसे खेलती हैं। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, लेकिन अब लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता। दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट, उन्होंने ये स्वीकार करना शुरू कर दिया, दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल, कि लड़कियां भी बहुत अच्छा खेल सकती हैं। अफसाना, अब अफसाना ने कहा, अफसाना टोल्ड, आई वॉज 11 years old. मैं 11 साल की थी। when we first started playing, जब हमने खेलना शुरू किया। at that time we were not allowed to go anywhere. शुरुआत में हमें कहीं पर जाना अलाउड नहीं था। अलाउड मतलब उनको अनुमति नहीं थी। anywhere, कहीं पर भी जाने की। they just only have a permission to play in the playground. केवल प्लेग्राउंड में खेलने का परमिशन उनको था। else to play a match, लेकिन नॉट nowhere else, कहीं और नहीं।
It has been 2 years since. ऐसे ही 2 साल बीत गए. Now we go to other places. अब हम other दूसरे places मतलब जगहों. अब हम दूसरी जगहों पर भी also for matches. अब हम दूसरी जगहों पर भी जाते हैं मैच खेलने के लिए. But all this could happen. ऐसा इसलिए हो सका. Happen मतलब हो सका. All this could happen. ऐसा इसलिए हो सका only because मतलब क्योंकि of our hard work. हमारी मेहनत की वजह से and sir's coaching और सर की कोचिंग की वजह से. Another girl. Another मतलब दूसरी लड़की ने कहा yes we really work hard. हम सच में बहुत मेहनत करते हैं. Really मतलब सचमुच में. सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट और सर भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं. वी फर्स्ट जोक टुगेदर मतलब एक साथ. हम पहले एक्सरसाइज करते हैं एक साथ, अभ्यास करते हैं एंड देन डू आवर एक्सरसाइज और फिर अभ्यास करते हैं. पहले जोगिंग करेंगे फिर अभ्यास करते हैं. सर टीचेस अस हाउ टू प्ले द गेम वेल. सर हमें टीच करते हैं. टीच मतलब पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि हम कैसे बेहतर खेलें. वी प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना. हाउ टू कीप द बॉल विद अस कि बॉल हम अपने पास कैसे रख सकते हैं. टू डॉज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम दूसरी टीम के खिलाड़ियों से बचाकर. हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट और उस बास्केट मतलब टोकरी में बॉल कैसे डालें. टू स्कोर अ गोल एक गोल बनाने के लिए. टू पास द बॉल वेल बॉल को पास करने के लिए. एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट और कोर्ट में जोर से दौड़ने के लिए. आफरीन ने कहा सर कहते हैं वाइल प्लेइंग खेलने के साथ डोंट थिंक यू आर गर्ल्स ऐसा मत सोचो कि तुम लड़कियां हो. प्ले लाइक अ प्लेयर किसी खिलाड़ी की तरह खेलना है. कीप प्लेइंग खेलते रहो. इवन इफ यू गॉट अ लिटिल इंजर्ड अगर तुम्हें चोट भी लग जाती है थोड़ी तो भी खेलते रहो. वी सपोर्ट मतलब सहायता करते हैं. वी सपोर्ट ईच अदर एंड से और कहते हैं कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन. उठो तुम बिल्कुल ठीक हो. नाउ आवर गेम हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. इम्प्रूव मतलब बेहतर हो गया है. अब हमारा गेम बहुत बेहतर भी हो गया है. एवरीवन सेज हर कोई कहता है दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज टीम. हम एज वेल एज की तरह बिल्कुल लड़कों की तरह खेलते हैं. वन गर्ल एक लड़की ने कहा वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज हम लड़कों के साथ भी खेलते हैं लड़कों की टीम के साथ. वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल मतलब समान. हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही खेलें जैसे कि वो लड़कों की टीम के साथ खेलते हैं और हम उनके साथ ऐसे खेलें जैसे कि लड़कियों की टीम के साथ खेलते हैं. दे शुड नॉट बी लीनियंट उन्हें उदार होने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज वी आर गर्ल्स क्योंकि हम लड़कियां हैं इसलिए उन्हें उदार होने की ज़रूरत नहीं है. समटाइम्स कभी कभी वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज इमिटेट अस. हम नाराज़ हो जाते हैं जब लड़के हमें इमिटेट करते हैं चिढ़ाते हैं. बट वी टेक इट एज अ चैलेंज लेकिन हम इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं. समझ रहे हो. एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स और अपनी गलतियों को सुधारते हैं. इफ द बॉयज ट्राई टू चीट वी स्कॉल्ड देम और लड़के अगर हमें चिढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें धमकाते हैं. वेट एक मिनट रुको. वी स्कॉल्ड देम. सो दिस इज एनफ फॉर द प्रेजेंट वीडियो बेटा. थैंक्स एंड